So if you have a continuous non-active function, then there are two constants c and k, so that ft less than c plus k integral of f, then you can write ft less than c e power k t minus t naught. So this inequality is applicable for non-negative function. Non-negative means they are positive or they are zero. So you have implicit relation in f. In right hand side, f is in integral. So you can sort out and then you find f in term of exponential function. So one corollary of this result that we are going to use here, which says that let f be a continuous non-negative function so same assumption, and k is a non-negative constant, or you can write k greater than or equal to 0. Okay, so in other words c is 0 here. Okay, so if you have ft less than k integral of, sorry, so here k, so c is 0, okay, in previous inequality. So then you have ft is 0 identically. So you can prove reduce from this c is 0, ft less than or equal to 0. ठीक है, नेगेटिव तो है नहीं, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज लेफ्ट दैट सी इज 0. और you can prove it by taking small epsilon. ठीक है, c की जगह एप्सिलॉन ले लो by taking c equal to epsilon. In previous result, take c equal to epsilon, तो फिर रिजल्ट क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन प्लस के ओके. तो अब ग्रोनवाल इनक्वालिटी क्या कहती है, बाय ग्रोनवाल्स इनक्वालिटी, सो एफ टी लेस देन सी यानी कि एप्सिलॉन ई पावर के, ओके. तो लास्ट में आप कर दो सिंस एप्सिलॉन वाज आर्बिट्रेरी, since epsilon was arbitrary, okay, so by taking limit राइट साइड से, नेगेटिव तो नहीं है ना, by taking limit you got ft 0, or you can write directly here. So ठीक है, ft नेगेटिव तो है नहीं, so only possibility is left that you have 0. So you can apply Gronwall inequality to a non-negative function with two constants c and k, both are non-negative, and by assigning c equal to epsilon we can write ft is 0. यानी कि अगर ये सिचुएशन है तो आपको ft हमेशा 0 मिलेगा. सो
Now I am going to prove uniqueness theorem. So using this inequality, we will prove uniqueness theorem. तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, जो वहां पे था यूनिक एग्जिस्टेंस में वही है. लेट एफ टी वाई बी कंटिन्यूअस विच सेटिस्फाई इलिप्सेट कंडीशन. यहाँ पे इलिप्सेट मस्ट है. वहां पे तो हमने क्या कहा था, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो तो उससे काम चल जाएगा. तो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो इलिप्सेट अपने आप था वहां पे. But here Lipset is must. So F satisfy Lipset condition on region A with the constant L, where region A is either rectangle रीजन क्या था, रेक्टेंगल क्या था, mod t minus t t naught less minus than t equal naught to 8 mod y minus y naught y less than minus equal y to naught t. less than some b, or Yes. unbounded strip और strip. Yes. वो रीजन क्या था, t. Mod t minus t naught less than equal to a and y less than infinity. So there is no restriction on y. ओके चले आगे. चाहे Yes, शॉर्ट sir. में ए इज ईदर रेक्टेंगल और स्ट्रिप. सो बहुत बार हमने लिख लिया. और इज अनबाउंडेड रीजन, तो इसमें था टी माइनस टी नॉट लेस देन ए एंड वाई कैन टेक एनी वैल्यू. ओके सो इफ फाई एंड साई आर टू सॉल्यूशंस, यूनिकनेस प्रूव करना है ना, आर टू सॉल्यूशंस ऑफ IVP y dash equal to f of ty with one condition on any interval I containing टी नॉट पे सेंटर्ड होगा वो इंटरवल आपका. देन फाई टी इक्वल टू साई टी फॉर एवरी टी इन आई. दिस मीन्स सोल्यूशन इज यूनिक. ठीक है, तो सोल्यूशन अब पहले आप अजम्पशन लिख लेना इसके. अजम्पशन क्या है, सो F is continuous. वी कंसीडर IVP okay on a rectangle or on a unbounded region strip. और assumption में क्या है, f be a continuous function satisfying Lipset condition with constant L.
विद लिपस्टेड कांस्टेंट एल। थ्योरम में पहले आप अजम्पशन लिख लिया करो जो होते हैं, ठीक है। सो फिर हमारे पास क्या, लेट फाई एंड साई आर टू सॉल्यूशंस। किसके सॉल्यूशन है? आईवीपी के, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, पिकार्ड में हमने लिखा था सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म इसमें होगा। जो फाई के का लिमिट था इस फॉर्म में होगा, ठीक है। एंड साई भी सॉल्यूशन है तो साई भी उसी फॉर्म में होगा, y0 प्लस टी नॉट टू टी एफ एस साई एस डी एस। ओके, सो both are solutions, so both satisfy the integral form। फाई लिखना है तो लेफ्ट और राइट में फाई लिखना है, साई है तो साई। अब हम करेंगे क्या, दोनों को माइनस कर देंगे और फिर ग्राउंड इक्वालिटी लगा देंगे इस पे। 2 आगे। So we have written phi and psi. Okay, so in this form, so then दोनों को डिफरेंस कर देंगे, then we will सर आपका जूम का स्क्रीन आ रहा है। apply Gronwall inequality। That screen is not available. ओ, रुको भाई, थोड़ा आ रहा है हैं, अब आ रही है। यस सर। इंटरनेट है वो, मेरे बस में नहीं है ना कि एकदम से मैं उसको अंदर घुस के ठीक कर दूंगा उसको। So let us assume that phi and psi are two solutions, then write phi and psi। चलो करो माइनस, लिखो क्या आएगा, एक लाइन का ही प्रूफ है आगे। दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। सर मॉड ले लेंगे, उसको लिमिट मॉड लगाकर 0 बना देंगे। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है ना हमने। यस सर। तो फाई माइनस आई, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक मॉड बाहर आएगा, है ना। या आप जो हम पहले करते रहे हैं, आप ये कर दो कि एक साइड में प्रूफ कर लो, दूसरी साइड में हम कह देंगे टी ग्रेटर देन टी नॉट, इस वाली साइड में हम कर रहे हैं। तो बाहर मॉड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मॉड को अंदर ले जाओगे, y0 तो कैंसिल हो जाना है, दोनों f बचेंगे, f फाई एस माइनस f साई एस डी एस। सर 2 मॉड लगाकर नहीं कर सकते? कर लो, कोई नहीं, ठीक है। कोई आगे दिक्कत ना आए बस। वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जिसका इंटीग्रल कर रहे हो वो भी पॉजिटिव है और बाहर भी पॉजिटिव है। हाँ, बाकी इनइक्वालिटी दोनों साइड में ट्रू है, ठीक है। ठीक है। इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब लिपस्टेड लगानी पहले है ना, f को गायब करना है। अप्लाई लिपस्टेड कंडीशन, सो दिस इज L, यहाँ पे लिख देना फॉर लिपस्टेड लगाओगे तो क्या बचेगा, फाई एस माइनस साई एस डी एस, ठीक है जी। अब ग्राउंडवाल इनइक्वालिटी लगा दो, क्रोरली लगेगी उसकी। क्रोरली क्या थी उसकी, जो अभी हमने लिखा था लास्ट में, आइडेंटिटी 0। हाँ। सो एफ टी, सी तो है नहीं इसमें, एक ही कांस्टेंट है ना, सी 0 है, के की k जगह इक्वल एल टू है, l है। और एफ की जगह क्या है, मॉड फाई पी फाई एस माइनस आई। माइनस आई एस। ओके, सो अप्लाई, हम उसको बस नाम से तो ग्राउंडवाल इनइक्वालिटी ही कहेंगे। अप्लाई ग्राउंडवाल्स इनइक्वालिटी, आप अपने रेफरेंस के लिख लेना क्रोरली जो उसका है, विद एफ टी इक्वल टू फाई माइनस साई एंड के इक्वल टू, के था एल। ओके,
so we have mod of phi t minus psi t is 0 for every t. So phi equal to psi. अगर मैंने So Newton is unique. ऊपर मैंने ये लिखा ना t, तो आप कर देना कि अगर वो लिखा है तो सिमिलर रिजल्ट holds if t less than t naught. ठीक है. सो जब भी आपने यूनिकनेस प्रूव करनी हो मैथ्स में कहीं भी इन एनीवेयर, सो जस्ट राइट टू थिंग्स, then either you get some contradiction or you will then at the end you will get that both are same. तो दोनों को लिखा हमने, माइनस किया, सबट्रैक्ट किया. ठीक है. फर्स्ट लेफ्ट साइड यूज करना है, देन यू हैव ग्रोनवाल फॉर्म, देन अप्लाई ग्रोनवाल्स इनइक्वालिटी. सो you got phi equal to psi. ओके. तो एक नीचे रिमार्क लिखना, आप पूरा लिख लेना. सो अब हमने दोनों पढ़ लिया. ठीक है. सो एक्जिस्टेंस भी पढ़ लिया, यूनिकनेस भी पढ़ लिया. एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस conditions are only sufficient, not necessary. इसका मीनिंग है, अगर आपके अजम्पशन ट्रू हैं, कंटिन्यूटी, इलिप्सड, तो यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा. ठीक है. अब मैं इकला भी कर रहा हूँ, एक्जिस्टेंस और यूनिकनेस, एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा. तो अब सब नेसेसरी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये ना हो तो देन यू कैन नॉट मेक एनी क्लेम. कि अगर इनके अजम्पशन ट्रू हैं फिर तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. अगर अजम्पशन ट्रू नहीं है देन दैट डिपेंड ऑन प्रॉब्लम. यूनिक मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, दैट डिपेंड ऑन सिचुएशन. सो दीज टिपिकल थ्योरम्स आर ओनली सफिशिएंट कंडीशंस, नॉट, दे आर नॉट नेसेसरी. ठीक है. अगर रेन हो रही है तो क्लाउड नेसेसरी है ना, सफिशिएंट नहीं है ना. तो एक एग्जांपल करते हैं, आपसे करवाते हैं, आप लोगों से. स्पेंड 4-5 minutes then let me know. So I'm clubbing both discuss existence and uniqueness of y dash equal to y1 by 3 plus t, y1 equal to 0. सर एरिया, हाँ जी, एरिया मेंशन नहीं करा, रीजन. नहीं मेंशन किया, वो हम खुद बताएंगे बाद में. अच्छा. बस सिर्फ ये प्रॉब्लम लिखी है. आप एंड में बताओ कि किस रीजन में ये करेगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि नहीं आ रही. ठीक है. डिस्कस करने के लिए क्या ना, डिस्कस एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस. सो व्हाट यू विल चेक, दोनों में कंटिन्यूटी ऑफ एफ. सर 1/3 का ग्राफ कंटिन्यूस होता है, टी का कंटिन्यूस होता है, तो पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा. कंटिन्यूटी है. लिपस्टर चेक कर लो. लिपस्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आए, किसी पॉइंट के लिए प्रॉब्लम आए, तो हम ये कह देंगे कि उस पॉइंट के प्रॉब्लम अराउंड नहीं है. हाँ, बाकी टी नोट आपको दे रखा है. ठीक है. आप शुरू कहाँ से कर रहे हो? लिपसेट 1 से. और तब y कितना है? 0 है इन द बिगनिंग. तो अगर हम प्लेन की बात करें, t1 है, y0, तो ये वाला पॉइंट है, इसके अराउंड हम देख रहे हैं. ठीक है. दिस इज t, दिस इज y, दिस पॉइंट इज 1, 0.
कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं आया आज? यस सर, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। आप फर्स्ट टाइम आए हो? Yes, सलोनी, यस सर। एग्जाम थे पहले? हाँ जी सर, एग्जाम चल रहे थे पहले। खत्म हो गए? यस सर। अच्छा, तो आप पढ़ना, इनसे नोट्स या वीडियो जो डाले हुए मैंने वेबसाइट पे वो लेना, ठीक है? अगर ओके दिक्कत हो तो बताना आप। ओके सर। वेबसाइट इनसे पूछ लेना, जो कोर्स वेबसाइट है ना हमारी। हाँ जी सर। ओके सर। कोई फ्रेंड है आपका यहाँ? क्या नहीं, सर? कोई फ्रेंड है इसमें क्लास में या सब नए? यस सर, यस सर, तनु है। हाँ, तनु तो लगाती है, बस पता है, ठीक है। हो गया भाई? कार्तिक क्या है? So what is f in our notation? So this is y 1 by 3 plus t. Starting point t naught is 1, y naught is 0. Okay? F is continuous, no problem. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूस है। अब लिपस्टर चेक कर लो, एफ टी वाई वन माइनस एफ टी वाई टू। सो वाई वन बाई थ्री, ठीक है, टी तो कैंसिल हो जाना है, तो दोनों को माइनस करोगे तो ये बच जाएगा। ये हमने शायद एग्जांपल पहले भी किया था। इसको आपने बनाना है वाई वन माइनस वाई टू। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, वो वाला फैक्टर लगाओ इसमें। अगर क्यूब होगा तो ये बन जाएगा ना, ये वाई वन माइनस वाई टू। यूज दैट एक्सपेंशन। क्या आएगा आंसर बोलो? ए क्यू माइनस बी क्यू सिम। सर ये क्यूब रूट गिवन है। हाँ, क्यूब रूट है, हमने वाई वन माइनस वाई टू बनाना है। तो जो ए क्यू माइनस बी क्यू का एक्सपेंशन है, उसमें ए आपका ये है वाई वन वन बाई थ्री, बी आपका ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है, ठीक है। तो अगर आप अब ए की जगह आप ले लो वाई वन वन बाई थ्री, बी की जगह है वाई टू वन बाई थ्री, ठीक है। तब जब इसका क्यूब करोगे तो ए क्यूब क्या बन जाएगा? वाई वन बन जाएगा। वाई वन, हाँ जी सर। तो इस फैक्टर से स्केयर वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वो तो क्यूब बना के इसको, मतलब हाँ जी, वाई वन वन बाई थ्री का क्यूब ये बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक स्केयर वाले फिर डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो नीचे ये बन जाएगा है। वाई वन टू बाई थ्री प्लस वाई वन बाई थ्री, वाई टू वन बाई थ्री। यस। ये बचेगा, चेक कर लेना कैलकुलेशन। अब इसमें या तो हर एक के लिए ट्रू होगा, बट नीचे डिवाइड हो रहा है तो प्रॉब्लम करेगा जीरो, ठीक है। यस सर, लेस देन इक्वल टू के जीरो लिए तो एक को फिक्स ही वैल्यू करो। नहीं आएगी। तो सपोज वी टेक एक को जीरो ले लो, वाई टू इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन क्या बनेगी? वैसे इंट्यूटिवली आप कह सकते हो कि आप डिवाइड कर रहे हो तो जीरो पॉसिबिलिटी, इफ y1 एंड y2 दे आर जीरो, सो यू कैन नॉट, दिस फंक्शन डोंट सेटिस्फाई लिपस्टेड कंडीशन, वो भी कह सकते हो। बट अगर सिंबॉलिकली करना चाहते हो तो आप एक को जीरो कर दो, किसी को कर दो, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी? ऊपर y1 माइनस y2 जीरो हो गया, नीचे क्या बचेगा?
y1 2/3 बचना है, ये तो उड़ जाएंगे 0 y2 की वजह से, है ना। यस सर। तो अब क्या लिखोगे? सो अब क्या आपको मिलना Y ये चाहिए था, साथ में l लाना चाहिए, तो l की जगह क्या आ रहा है? मॉड भी था, l की जगह क्या आ रहा है? y1 2/3, 2/3 but this is unbounded. Why it is unbounded? आप शुरू भी 0 से ही कर रहे हो, वैसे देखो ना, स्टार्ट भी आप 0 से ही कर रहे हो, y 0 से शुरू कर रहे हो ना, यस सर। तो उसके अराउंड, उसके आसपास में y1 y2 भी तो 0 हो सकते हैं। यस सर। ओके, सो इन ठीक है। सो क्या लिखोगे आगे? सो हियर f does not satisfy a Lipset condition as 1 by y1 2/3, this goes to infinity। ठीक है, आपका लिपसेट कांस्टेंट फाइनाइट आना चाहिए था। तो कंक्लूड क्या करोगे? एक्सिस्टेंस नहीं तो होगा सॉल्यूशन का। so so around this region, assumptions of existence and uniqueness theorem are not satisfied। so आप श्योर नहीं हो, सफिशिएंट कंडीशन यही होती है ना, अगर ये सेटिस्फाई करता तो आप कहते कि हाँ ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन। अब नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे? अब अजम्पशन भी ट्रू नहीं है तो हम कंक्लूजन भी ट्रू नहीं है, मतलब कहने का मीनिंग है, सो कंक्लूड यू कैन नॉट मेक एनी कंक्लूजन। तो आगे की लाइन लिख दो। सो लिख लो कि f set does not satisfy Lipset condition, so we cannot say whether unique solution exists or not। तो लिख देता हूं मैं अगले पेज पे। so we cannot say whether unique solution exists or does not exist। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये होता, अगर 0 की जगह 1 होता, फिर आप कहां पे आ जाते हैं? 1 1 बन गया, 1 हाँ 1। जी सर। फिर देखो स्मॉलर फिर रीजन हो exist जाए करता। तो फिर करेगा आपका, ठीक है। सो इनिशियल कंडीशन Bounded हो चेंज कर जाएगा। दोगे तो ये फिर लिपसेट भी सेटिस्फाई हो जाएगी, हाँ जी सर। ठीक है। तो Yes. एक रिमार्क लिख दो आगे, और रीजन पे डिपेंड करता है, हमने बार बार कहा है। मतलब उस सेंटर, उस पॉइंट के आसपास में कहीं होगा सॉल्यूशन, ठीक है। सो इफ वी टेक same problem, y1 equal to 1, then this problem has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन अराउंड जो भी आपका पॉइंट था 1 1। ओके, सो कंडीशन इज आल्सो मस्ट। कंडीशन चेंज करोगे तो आपका सॉल्यूशन का बिहेवियर चेंज हो सकता है। सो वेदर यू गेट यूनिक और वेदर यू डोंट गेट यूनिक सॉल्यूशन। सो वन मोर एग्जांपल। तो एग्जांपल नहीं है ये, थोड़ा सा शॉर्ट रिजल्ट है। थ्योरम, ये थ्योरम ये कहता है कि आपके पास प्रॉब्लम है, जैसे हमने पहले लिया था। सो यू टेक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वेदर ऑन बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन। सो सेम सिचुएशन इज हियर अगेन। आल्सो एफ सेटिस्फाई लिपसेट कंडीशन, दोनों अजम्पशन है। तो इस थ्योरम के दो पार्ट हैं।
एक में तो वो कहता है कि आपके पास दो डिफरेंट इनिशियल कंडीशन है, जैसे ये एग्जांपल था, ठीक है, प्रॉब्लम सेम है, एक बार कंडीशन आपने लिया y1 इक्वल टू 0, दूसरी बार लिया y1 इक्वल टू 1, सो यू हैव टू डिफरेंट इनिशियल कंडीशन। तो फिर सॉल्यूशन कैसे बिहेव करेगा, यानी कि उनका डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट में थोड़ा सा हमने ये प्रूव करना है कि कंडीशन सेम है बट यू हैव टू डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि उसमें उसमें क्या होगा, कंडीशन सेम, मान लो ये सेम, यहाँ पे प्रॉब्लम चेंज होगी, एक प्रॉब्लम ये है, दूसरी मान लो ये है, तो दोनों के सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। प्रूफ बड़ा शॉर्ट है, जैसे अपने यूनिकनेस थ्योरम प्रूफ किया है, ग्रोनवाल इनइक्वालिटी लगानी है, बस उसी से हो जाना है। बट स्टेटमेंट थोड़ी बिग है क्योंकि हमने अजम्पशन लिखने हैं पहले। एफ बी कंटिन्यूस ऑन रेक्टेंगल लिखना जल्दी से लिख लो, हमने लिखा हुआ है पहले बहुत बार। रेक्टेंगल क्या था रीजन, टी वाई बिलोंग्स टू R2, ये भी लिखने का तरीका है, दोनों वे में ट्रू है। ऑन रेक्टेंगल और ऑन ए स्ट्रिप, उसको मैंने एस से लिखा था, सो यू हैव पेयर टी वाई इन R2, t is bounded but y is unbounded, okay, so f is continuous on this region. Also f satisfy a Lipset condition with constant L, okay, same assumption। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना है, let phi and psi are solutions of IVP, y dash equal to f of ty, okay, ऑन इंटरवल i, जो हमारा नोटेशन था, ऑन इंटरवल i, ठीक है। सो फाई एंड साई आर सॉल्यूशंस ऑफ IVP। सर आईवीपी की कंडीशन हाँ वो लिख रहे हैं, ऑन इंटरवल i, नेक्स्ट इज satisfying two conditions, satisfying the initial conditions, कंडीशन दो हैं, एक है y t नॉट इक्वल टू y नॉट, और दूसरी कंडीशन है ठीक है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली कंडीशन से जो सॉल्यूशन है वो फाई है और दूसरी कंडीशन से सॉल्यूशन साई है, ठीक है। देन अब प्रूफ हमने क्या करना है, हमने दोनों का डिफरेंस निकालना है, फाई टी माइनस आई टी, तो डिफरेंस आएगा y0 कंडीशन का डिफरेंस e पावर l, अब ये e पावर l आ जाए कहीं पे तो समझ जाना कि आप ग्रोनवाल इनइक्वालिटी लगी हुई है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू i। बाकी इस कंडीशन को हम, इसका नाम भी है, दिस इज कॉल्ड, मतलब क्या बता रहा है, दो इनिशियल डाटा है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिपेंडेंस ऑन इनिशियल डाटा, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिपेंडेंस of solutions on initial value, continuous dependence, कि इनिशियल कंडीशन चेंज करोगे तो सॉल्यूशन
मतलब सॉल्यूशन का डिफरेंस कैसा होगा? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, फिर तो इक्वल ही हैं, बट इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम इतना हो सकता है जो आपका राइट हैंड साइड में है। ठीक है, सेकंड में है, अब आपके पास दो सिचुएशन है। सो लेट जी, एक जी भी आ गया दूसरा, जी टी बी कंटिन्यूस ऑन गिवन रीजन, सेम रीजन पे, ये भी एक दूसरा फंक्शन है। ठीक है, और जी और एफ का डिफरेंस दैट इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, उस रीजन के अंदर। अब इसमें भी दो फाई हैं, लेट फाई, सर एप्सिलॉन की कंडीशन नहीं लिखेंगे कुछ? नहीं कोई कंडीशन नहीं, फॉर एवरी एप्सिलॉन। ठीक। ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। ठीक है, let phi and psi be solutions of IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। अब दो बना दी मैंने। IVPs कौन सी हैं? पहली y डैश इक्वल टू f, ठीक है, दूसरी IVP कौन सी है? एंड y डैश इक्वल टू g, gt y t नॉट इक्वल टू y1। y1। ठीक है, नहीं कंडीशन दोनों की सेम है, एफ डिफरेंट है यहाँ पे। वाई टी नॉट भी वाई नॉट है, और सेकंड में भी जो वाई टी नॉट है वो भी वाई नॉट ही है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे। सेम, यानी कि एफ अलग अलग है बट कंडीशन दोनों की सेम है। पहले क्या था, कंडीशन अलग अलग थी, एफ सेम था। ठीक है, तो फिर क्या होगा देन, फॉर ऑल जो भी आपने रीजन लिखा है टी इन आई, जो इनका डिफरेंस होगा फाई टी माइनस साई टी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ए ई पावर एल ए। और ये मतलब मैथमेटिकली इसको ये भी बोलते हैं कि जी अप्रोचेस टू एफ यूनिफॉर्मली, तो जो सोल्यूशन होगा वो भी अप्रोच करेगा। एप्सिलॉन को जी तो ले सकते हैं ना, यानी कि अगर जी और एफ क्लोज होंगे तो फाई और साई भी क्लोज होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बिगर है, प्रूफ छोटे छोटे हैं इनके, चाहे नीचे लिख लेना इन पर्टिकुलर। सो लिख लिया, आगे कर दें। यस। सो इन पर्टिकुलर as G approaches F, FTY uniformly, मतलब that is एप्सिलॉन goes to 0 positive, the solution phi t approaches, मतलब चाहे ऐसे लिख दो, approaches to psi t uniformly on जो भी आपका इंटरवल होगा। ठीक है, अजम्पशन मैं अब नहीं लिख रहा बार बार। ठीक है, आप लिखना चाहे तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ ट्राई दोगे आप, एक साइड में अज्यूम कर लो सिंपलिसिटी के लिए टी नॉट के राइट में। ठीक है, वैसे मैं इसको कई बार एग्जांपल लेके भी कराता हूँ। अगर आप एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो ना, एग्जांपल क्वेश्चन मतलब, तो क्वेश्चन में हम यूजुअली आप चाहे एजम्पशन नाम ही लिखो ना दोबारा से, बट थ्योरम का में आप लिखते हो दोबारा से सब कुछ, आप लिख लेना जो एजम्पशन ऊपर है ना। ठीक है, एफ कंटिन्यूस है एवरीथिंग, तो आप डिफाइन कर दो फाई
फर्स्ट प्रॉब्लम में है क्या, फाइव फाइव सोल्यूशन है, और साई भी सोल्यूशन है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ इनिशियल कंडीशन का, यहाँ y1 आ जाएगा। ठीक है, यही था फर्स्ट पार्ट में। यस सर। फाइव इज ए सोल्यूशन, सेम प्रॉब्लम है विद कंडीशन y0 और साई y1 के लिए। आगे अभी हम यूनिकनेस किया था, सेम ही प्रूफ है, दोनों का डिफरेंस निकालो। ठीक है, डिफरेंस करोगे तो y0 माइनस y1, अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम अलग अलग हैं। t0 टू t, f वालों को इकट्ठा कर लो। ठीक है, ds और बार ए मॉड। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दो, पहले अलग कर दो दोनों को, इनको t0 t से बड़ा ही लिया है मैंने, तो बाहर मॉड की जरूरत नहीं है, मॉड को अंदर ले जाओगे ये साइड और बड़ा हो जाएगा। अब f को डिसअपीयर करना है तो क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेफ्ट साइड लगा दो। ठीक है, लेफ्ट साइड लगाओगे तो राइट हैंड साइड और बड़ी हो जाएगी। फर्स्ट टर्म एज इट इज, l t0 टू t, यहां बच जाएगा 5s माइनस साई s। क्या यूज किया, यूज लिपस्टेड कंडीशन। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। है, एक बार पीछे वाला पेज। दोनों को माइनस किया, पहले हमने यूज किया, यहां लिख देना ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यूज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको सेपरेट किया, इसको सेपरेट किया। ठीक है, इंटेग्रेंड को पॉजिटिव किया। ओके, यस सर। ठीक है, अप्लाई लिपस्टेड कंडीशन, तो हो गया प्रूफ। अब क्या लगाना है, ग्राउंड वॉल लगा दो, फर्स्ट वाली ग्राउंड वॉल इनइक्वालिटी, सी और के वाला, या ब्रैकेट में लिख लेना, सी क्या है y0 माइनस y1, के क्या है l, और f क्या है 5 माइनस i। तो ग्राउंड वॉल इक्वलिटी क्या कहती है, एफ टी, ये f है आपका, एफ टी लेस देन और इक्वल टू सी ई की पावर l के आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर आप कर दो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सिमिलर रिजल्ट होल्ड्स फॉर t लेस देन t0। दोनों को कंबाइन करोगे तो ऊपर मॉड आ जाएगा, कंबाइनिंग बोथ, combining, so 5 minus psi less than or equal to e की पावर l, या उसमें t नॉट माइनस टी आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ही रखना है, पॉजिटिव ही आएगा उसमें भी, उसमें t नॉट बड़ा है ना, दोनों को इकट्ठा करोगे तो आप मॉड लिख सकते हो, मतलब e की पावर पॉजिटिव ही आएगी दोनों केस में। l तो पॉजिटिव है ही। So by applying ground wall inequality, you got this. Okay. So we have class at 4:20 या 3:30. फॉलो कर रहे हो भाई सारे? यस सर। 420। 420। अच्छा, तो बी पार्ट करके लाना, ठीक है, मैं देखूंगा। अब फ्री हो, मेरे को पता तुम लोग अभी है ना, उसके बाद बी पार्ट सेम वे में करना है, फाई और साई लिखने हैं, बस उसमें फर्क क्या होगा, फाई में फाई यही रहेगा y0 वाला, ठीक है, और साई भी ये y0 रहेगा, यहाँ पे उसमें y0 रहेगा, बट यहाँ पे g आ जाएगा। सेम वे में दोनों को माइनस करना, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज है,
that you will show in next class. Okay, if you have any query, then you can ask in the beginning of next class. So we will meet at 4:20. ठीक है बच्चों, बाय फॉर नाउ. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके.